सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंडक्ट हुआ था 18 जून 2024 को इवनिंग शिफ्ट में। सो एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर ए नहीं बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस आपको उसके लिए रीजनिंग देनी होगी। आपको ये बताना होगा कि आपको क्यों लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं बी होना चाहिए। So now let's get started. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है जिसमें कुछ किडनी पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स का डेटा दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट सेज if the number of patients increases by 10% every year in Europe, then what is the difference between number of patients in Europe after 2 years and the number of kidney patients in South America in 2023? So इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस 8 lakhs. Okay. Now, second question says, if the number of hepatitis patients in the world increases by 6% and that of the heart disease increases by 22%, then what will be the new ratio of number of hepatitis patients to the number of heart disease patients in the world? So, इसका आंसर हो जाएगा 159 is to 671. Okay, next question says if the number of kidney patients in South America decreases by 25%, then what is the percentage decrease in the number of kidney patients in the world? So guys, कुछ लोगों ने इसका आंसर जो है 8% बताया है, but according to us इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है 10%. So next question is, what is the ratio of number of patients in Africa to the total number of kidney patients in Asia and North America together? So इसका आंसर है 50 is to 21. 50 ratio 21 यानी कि ऑप्शन 4. Next question says the number of kidney patients in Australia is approximately what percent of heart disease in the world? तो इसका आंसर है 6.82%. ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो ये फ्रैक्शंस है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बना लेते हैं, इस इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14/17 है 0.824। 11/13 का डेसिमल है 0.846। 7/9 का डेसिमल है 0.78 और 16/19 का डेसिमल है 0.842। सो इस हिसाब से सबसे छोटा हो गया C, देन उसके बाद हो गया A, देन इज D, देन B। तो इसका आंसर हो जाएगा CADB। सो इट्स विच इज ऑप्शन 2। Now let's see seventh question, which says which of the following statements are correct as per the classical Indian school of logic, which is the Nyaya philosophy. So there are 4 statements. पहला statement कहता है न्याय syllogism has 3 prepositions. न्याय syllogism has 5 prepositions. न्याय syllogism has 3 terms and न्याय syllogism has 5 terms. So guys, न्याय syllogism में 5 prepositions होती हैं और 3 टर्म्स होती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज दी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बी एंड सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ L represents a number L in base M number system, then identify the correct ascending order of the following numbers A to D when converted to a base 10 नंबर सिस्टम। तो अब ये सीधा सीधा आईसीटी का क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, तो हम इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 139
ये हो जाएगा 138, देन इज 140, उसके बाद 141। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए, सी, डी। Okay, now let's see the next question, which says, which of the following statements are true? Statement A says, truth and falsehood are attributes of individual prepositions. Validity can never apply to any single preposition by itself. In a valid argument, all of its premises have to be true. A valid deductive argument cannot have all true premises and a false conclusion. सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो prepositions हैं, prepositions को हम कैसे डिफाइन करते हैं। preposition को हम डिफाइन करते हैं ट्रू या फॉल्स से, और जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं वैलिड या इनवैलिड। तो इस लॉजिक के साथ जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, बी एंड डी, विच इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Now next question says, a 500-meter long train running at a speed of 100 meter per second crosses a tunnel in 10 seconds. So what is the length of the tunnel? So इसका आंसर हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है। Next question says, which of the following is an ancient Indian treatise on problems related to mathematics? ये तो सीधा सीधा आपका हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लीलावती। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, a culture which is not touched by communication of alphabetic writing is known as a culture of। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉमन सेंसिकल भी आप इसको बोल सकते हो, जहां पर अल्फाबेटिकल कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो यहाँ इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ओरेलिटी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 कहता है कॉलेजेस के नाम और लिस्ट 2 में है उसके फाउंडर्स। तो अब हम देख लेते हैं कि पूना कॉलेज ऑफ हिंदू लर्निंग को हम मैच कर सकते हैं किससे, 2 के साथ, यानी कि राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। देन हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज भी नाम है जिसका, तो उसको हम किसके साथ मैच कर सकते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ। ठीक है। देन बिशप कॉलेज सिरपुर, इसको हम मैच कर सकते हैं एम एल्फिंस्टोन के साथ। देन स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, इसको अलेक्जेंडर डफ के साथ हम मैच कर देंगे। यानी कि उस हिसाब से जो है आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। Now next question says, what is the correct sequence from lower number to higher number? अब SDGs किसका पार्ट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। तो अब SDGs और MDGs के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल एनटीए। तो SDGs कितने होते हैं, ये तो हमें पता है कि इसमें 17 गोल्स होते हैं। तो सबसे लोएस्ट, ओके, बी हो गया, तो यानी कि ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1 तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद गोल्स तो हमारे कितने होते हैं, 17, टारगेट्स होते हैं 169। अब देखो बी सी, अब देखो ये रहा, तो इसी से हमारा आंसर निकल गया। अगर हमें ये पता होता कि गोल्स 17 है और टारगेट्स 169 है, तो उससे ये हमारा आंसर निकल जाता। और इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो 247 है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है स्वयं का। स्वयं के इसमें आपको कोऑर्डिनेटर्स बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्सेज? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग,
ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन। तो अब इसमें से सिर्फ हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, हम ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये स्वयं के 9 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिसमें ये 4 हैं और ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई। तो यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया हुआ है लिस्ट 1 में और उसकी इंटरनेट एक्टिविटी दी हुई है कि वो क्या करता है। तो HTTP, SSL, SMTP एंड FTP। अब देखो SMTP का तो हमें पता है मेल से रिलेटेड कुछ है, FTP पता है फाइल ट्रांसफर, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये TCP IP से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, और SSL। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि HTTP हम किससे मैच करेंगे। यहाँ पर HTTP हम मैच कर लेते हैं 3 के साथ, विच इज सेंड्स TCP IP पैकेट्स टू द वेब सर्वर, विच इज A। ठीक है, देन SSL, देखो ए के साथ 3 एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको HTTP भी अगर पता होता तो उससे भी आप यहाँ पर मैच कर लेते, विच इज ऑप्शन 4। तो बाकी भी देख लेते हैं। तो SSL मैच हो जाएगा इनक्रिप्ट डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन। तो यानी कि बेसिकली इंक्रिप्शन का काम है इसका, SSL का सिक्योरिटी से रिलेटेड ये चीज है। ठीक है, तो SSL मैच हो जाएगा इनक्रिप्ट डेटा फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देन SMTP send email through the internet, yes we already know it, and FTP is file transfer protocol which says transfers file over the internet। so इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। now which of the following statements are logically equivalent to the statement no cats are non feline। तो अब देखो इसमें आपने ऑब्वर्जन पढ़ा होगा। तो इसके अंदर ऑल कैट्स आर फेलाइन जो है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट का ऑब्वर्जन है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड इन। अब देखो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आपने सुना होगा। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स या फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये सारे ही जो वेरिएबल्स की बात हम करते हैं, किसमें करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इस हिसाब से ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। यहाँ पर दिया हुआ है एनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, डिवाइजिंग प्लान्स, सेटिंग गोल्स, रेगुलेटिंग लर्निंग एंड एनालाइजिंग द टास्क। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं, सबसे पहले आएगा कि आपको अगर कोई भी टास्क मिलता है, आप सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग जब होती है तो आप टास्क को सबसे पहले एनालाइज करोगे। टास्क को एनालाइज करने के बाद उसके बेसिस पर आप गोल्स को सेट करोगे। गोल्स को सेट करने के बाद आप उस गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाओगे। उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे एंड देन सबसे लास्ट में होता है रेगुलेटिंग लर्निंग, आप उस चीज को सीख जाओगे। ठीक है, सो इस हिसाब से ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला कहता है अराउंड 1945 हु डेवलप्ड द आइडिया ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर दैट वाज टू होल्ड programs and data in memory and then data would move between memory and the processor। अब इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। अब ये जो है काफी स्टैटिक बात है, इसको आप ICT में पढ़ते हो। ठीक है,
Next question says, which of the following statements about computer memories are correct? HDDs may experience a head crash. HDDs may experience a head crash. SSDs are also known as volatile memory. No. SSDs नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है. बेसिकली जो SSDs होती हैं उसमें हम डेटा अपना स्टोर करके रखते हैं. अगर वॉलेटाइल होगा तो हम उसमें स्टोर करके नहीं रख पाएंगे. तो SSDs आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. HDDs डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स. जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसको हम वो रिमूवेबल होती है. ठीक है, इस हिसाब से ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. एंड कंप्यूटर्स डू नॉट हैव कंप्यूटर्स यूजुअली हैव मोर प्राइमरी मेमोरी देन सेकेंडरी मेमोरी. तो ये वाली बात भी गलत है. प्राइमरी मेमोरी कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा होती है. तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट विच सेज हार्ड डिस्क ड्राइव्स में एक्सपीरियंस अ हेड क्रैश. अगला स्टेटमेंट है विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैव बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव्स, नेमली यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLISD एंड इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम. तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शोध सिंधु. जो रिसर्च स्कॉलर्स होता है उनका जो भी डेटा वगैरह होता है वो यहाँ पर होता है. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है उसमें जो ये तीनों यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, NLIST और इंडेस्ट AICTE कंसोर्टियम, इन सबको मर्ज करके क्या बना दिया है? शोध सिंधु. ठीक है. शोध शुद्धि जो है वो प्लेजरिज्म के लिए होता है. ठीक है. ये भी रिलेटेड टू रिसर्च है. और यहाँ पर जो स्कॉलर्स की थीसिस होती है शोध गंगा में वो आपको मिलती है. शोध गंगा में जब आप कभी रिसर्च करते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आपको जो उसी टॉपिक से रिलेटेड पुरानी रिसर्चेस जो भी होती हैं वो आपको शोध गंगा में मिलती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लिस्ट 1 में कम्युनिकेशन फॉर्म है और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन है. अब इसमें दिया है पर्सनल एड्रेस, सोशल ड्रामा, नैरेटिव्स एंड साइलेंस. अब इसको हम मैच कर देंगे. सबसे पहले पर्सनल एड्रेस से मैच हो जाएगा पॉइंट टू सेल्फ एंड अदर्स इन इंटरेक्शन. तो इसको हम मैच कर देंगे 3 के साथ. ऐसा एक ही ऑप्शन में है, बाकी भी देख लेते हैं. सोशल ड्रामा, इट बेसिकली इन्वोक्स द लोकल सोशियो कल्चरल रूल्स ऑफ और बिहेवियर. तो सोशल ड्रामा में हम जो जेनरिक सोसाइटी की जो नॉर्म्स वगैरह हैं वो बेसिकली हम दिखाते हैं. तो यस, बी के साथ 4 मैच हो जाएगा. नैरेटिव्स मतलब कि कोई अपने बारे में, मतलब अपना जो ओरल स्टोरी है या जो ऑटोबायोग्राफी है वो बता रहा है, नरेट कर रहा है कोई भी चीज अपने बारे में या जो भी उसकी नॉलेज है उसको वो बोल के बता रहा है. सो सिक्वेंशियल अकाउंट्स टोल्ड और रीटोल्ड फॉर फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट. सो ये हो जाएगा नैरेटिव. साइलेंस 2 से मैच हो जाएगा विच सेज सब्जेक्ट टू अ कम्युनिटीज रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट कंडक्ट. तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. Now next question says which of the following computer devices are output devices only? Trackball, CRT monitor, number pad and plotter. अब इसमें से हमें ये तो पता है कि जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है. ठीक है. और इसके अलावा जो प्लॉटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है. इस हिसाब से जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर. Now next question says which of the following are true about solar thermal energy collectors? अब 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं. बेसिक यूनिट ऑफ STEC इज अ सोलर सेल. STECs may be flat plate or concentrating type. Temperature in STECs may rise over 1,000 degrees Celsius. STECs can produce electricity. Paraboloid dish collector is an example of STEC when temperature can go up to 2000 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर जो है
ऑप्शन ए के अलावा सारे के सारे करेक्ट हैं, विच इज B, C, D, E करेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर ए क्यों नहीं होगा वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो सोलर सेल है, सोलर सेल का क्या काम है? सोलर सेल जो है डायरेक्टली जो सोलर एनर्जी जो सनलाइट से आती है, उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर देता है? डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, लेकिन जो सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, जिसमें आपको वर्ड थर्मल पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो STEC है, यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी डायरेक्टली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर आपको ये थर्मल एनर्जी कैसे बनती है? थर्मल एनर्जी में हम पानी को बॉईल करके इवेपोरेट करवा के और फिर हम उसको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करवाते हैं, राइट। सो जो सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स हैं, यहाँ पर सोलर एनर्जी को डायरेक्टली ही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट इज द रीजन जो स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। Now next says arrange the following sections of a research dissertation in a correct sequence. Acknowledgement, research methods, discussion and literature review. So सबसे पहले हम acknowledgement करते हैं। उन लोगों को हम acknowledgement देते हैं जिन्होंने हमारी रिसर्च में हेल्प की। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, रिसर्च गाइड हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हम रिसर्च मेथड्स देखते हैं कि कौन से रिसर्च मेथड्स हम यूज करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं। सो A, D, C, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, देन बी हो जाएगा एंड देन सी हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आई बिलीव आई विल डू वेल इन द क्लास। ठीक है, राम डिक्लेयर्ड टू हिज ब्रदर आई रिसीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑन अ वर्बल पार्ट ऑफ सैट एंड आई हैव ऑलवेज एक्सेल्ड इन माई लिटरेचर क्लासेस। सो राम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? राम ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि मैं क्लास में अच्छा करूंगा, क्योंकि सैट में मेरा परफेक्ट सैट में जो वर्बल पार्ट होता है उसमें मेरा परफेक्ट स्कोर आया है और मैंने हमेशा से ही लिटरेचर क्लासेस में एक्सेल किया है। सो राम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? राम डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हिज हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट कुछ लोगों ने इसका आंसर सेल्फ एस्टीम भी दिया है। बट अकॉर्डिंग टू अस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन 3 विच इज हाई सेल्फ एफिकेसी इन लिटरेचर। नाउ next question. It says a sum of rupees 50 is divided among A, B and C in such a way that A gets 5 less than B, B gets 10 less than C. What is the ratio of their money share? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3:5। Now, next question says, identify the correct sequence from earliest to latest of the universities established in early years of the 20th century in India. So, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी वो 1918 में बनी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, SNDT यूनिवर्सिटी 1916 में, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में, देन पटना यूनिवर्सिटी 1917 में। तो उस हिसाब से CEA बी CEABD CEABD. So this would be the correct answer. Okay. Now, next question says, identify the list of 4 quadrants of the courses hosted on SWAYAM.
स्वयं से ही सेम पेपर में दूसरा क्वेश्चन है। सो स्वयं को थोड़ा सा ध्यान से करना है। सो स्वयं के चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन्होंने दिया है स्टेटमेंट ए में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड, प्रिंटेड, फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग लर्नर्स। अब देखो स्वयं का मतलब ही है क्या, ऑनलाइन। तो यहाँ पर सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना था, जहां पर फेस टू फेस इंटरेक्शन अमंग लर्नर्स नहीं होता है। तो यहाँ पर ई जहाँ पे भी एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों में ई स्टेटमेंट इन्होंने इंक्लूड करी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर वेयर ए बी सी एंड डी स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now, arrange the following in order of increasing connotation: domestic animal, animal, horse, and beast of burden. तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए डी सी। तो इस हिसाब से एनिमल इज वन, देन डोमेस्टिक एनिमल, देन बीस्ट ऑफ बर्डन, एंड देन हॉर्स। यानी कि सबसे जो जनरल से हमें स्पेसिफिक पर जाना था, तो सबसे जनरल क्या है, एनिमल, और सबसे स्पेसिफिक क्या है, हॉर्स। Next question says the in Buddhist thought, self-reflexivity is built into the process of power relations, religious change, verbal communication and politicization. So अब देखो जो बुद्धिस्ट थॉट है, इसमें हम बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन की बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो पावर रिलेशंस, रिलीजियस चेंज और पॉलिटिसाइजेशन नहीं होगा। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ which of the following statements are true regarding Macaulay? He succeeded in replacing Persian with English as a administrative language. He promoted training of English speaking Indians as teachers. He was inspired by utilitarian ideas and he promoted useful learning. अब इसके अंदर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैकॉले ने क्या कुछ चीजें कही थी। मैकॉले ने जो है डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। और इन्होंने इसमें क्या बोला था कि जो इंडियंस जिनको वो ट्रेन करेंगे, दे शुड बी इंडियंस बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट। सो डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी में ये था कि मैकॉले ये चाहते थे कि सबको एजुकेट करने से कोई फायदा नहीं है। जो कुछ इंडियंस को वो चाहते थे कि दे शुड बी इंडियंस बाय ब्लड एंड ब्रिटिश बाय टेस्ट। सो उनको वो ट्रेन कर रहे थे, और वो ये सोच उनकी सोच ये थी कि उनके थ्रू ही इट विल गेट इनफिल्ट्रेटेड टू द अदर स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी। सो इस हिसाब से जो आंसर है वो सारे ही करेक्ट है। स्टेटमेंट्स ए बी सी एंड डी इज करेक्ट। जिसमें उन्होंने पर्शियन को रिप्लेस करके इंग्लिश कहा, और स्कूल्स में इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को रखा। इसके अलावा यूटिलिटेरियन, क्योंकि उनका जो यूटिलिटेरियन आइडियाज का मतलब कि उन्होंने एक ही दिशा में सोचा कि वो ये चाह रहे थे कि जो इंग्लिश है वो हम यहाँ पर प्रमोट करें थ्रू इंडियंस, और he promoted useful learning as well. So both all the statements are correct and hence option 4 is the correct answer. Now यहाँ पर ये फिर से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, ये NEP का क्वेश्चन है। Gross enrollment ratio measures a number of students enrolled in higher education as a percentage of the eligible population agreed upon. So यहाँ पर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स का हायर एजुकेशन में, तो उनकी एज 18 से 23 के
बीच के लोगों को हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which one of the following is an extremely short lived unstable water air pollutant? तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने मार्क किया है VOC विच इज वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए स्मॉग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी रिसर्च डिजाइन का क्वेश्चन है ये। लिस्ट वन में थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी दिया हुआ है और लिस्ट टू में उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सो हम सीधा सीधा यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। मैचुरेशन जो थ्रेट है उसको हम 3 से मार्क करेंगे विच इज अकर्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अ पार्टिसिपेंट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक बोर्डम फैटीग एक्सेट्रा। उसके बाद हम बी को 4 के साथ मैच करेंगे जो कहता है when participants drop out of the study leading to a change in nature of the sample। उसके बाद हिस्ट्री को हम मैच कर देंगे 2 के साथ जो कि कहता है when some event outside the research project affects participants systematically, and then testing thread को हम मैच कर देंगे 1 के साथ जिसमें कहता है when participants behavior changes as a function of having been tested previously। सो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नाउ अब यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई हैं, इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके साथ कोड। तो बोल्ट, रिंग, सोल्ड और फ्रॉम। तो बोल्ट के साथ हम मैच कर देंगे 3 को विच इज 48 सॉरी 49। देन रिंग के साथ हम मैच कर देंगे 48 को, सोल्ड के साथ हम मैच कर देंगे 50 को और फ्रॉम के साथ हम मैच कर देंगे 52 को, एंड हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ next question says International Solar Alliance is an alliance of countries most of which lie partially or completely। अब यहाँ पर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस किन कंट्रीज के बीच में हो सकता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं, उन कंट्रीज के बीच में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो सकता है क्योंकि वहीं पर ही जो सनरेज हैं डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है। Now, identify the scale of measurement which would align ranking of observations। अब देखिए इसमें से जिसमें दिया है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। अब ये तो हमें पता है जो नॉमिनल स्केल है वो नेमिंग उसमें करते हैं हम, या हम क्या बनाते हैं कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज जैसे कि मेल फीमेल। अब ऑर्डिनल स्केल में नेमिंग तो होती ही है बट यहाँ पर रैंकिंग भी होती है। इंटरवल स्केल में नॉमिनल और ऑर्डिनल के दोनों के फीचर्स होते हैं, प्लस यहाँ पर क्या होता है आर्बिट्रेरी 0 और रेशियो में एब्सोल्यूट 0। सो इस हिसाब से रैंकिंग किस में नहीं होती, नॉमिनल स्केल में नहीं होती, बाकी सब में रैंकिंग होती है। इस हिसाब से बी सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वाटर स्पेसिफिक डिजीजेस बताई हैं और उसके साथ होने वाले जो मतलब उन वाटर बॉर्न डिजीजेस से होने वाले डिजीजेस बताए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले वाटर रिलेटेड डिजीजेस, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। वाटर बॉर्न डिजीजेस इसमें ड्यू टू ingestion of polluted water, water washed diseases due to lack of cleaning water, then water based diseases है due to contact with polluted water,
just a moment guys. Yes, polluted contact with polluted water, और यहाँ पर इन्होंने बोला है पैरासाइट्स पॉल्यूटेड वाटर। अब देखो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। जो वाटर रिलेटेड डिजीजेस जो कि पॉल्यूटेड वाटर में पैरासाइट्स की वजह से होती हैं, तो ऐसी डिजीज है ये। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देंगे डी। ठीक है, और इसके अलावा जो वाटर वॉश्ड डिजीजेस, इसका मतलब गंदे पानी से आपने अपना चेहरा धोया या अपनी आपने आंखें धोई, तो उसकी वजह से होने वाली डिजीज वो है ये ट्रैंकोमा, दैट इज बी। तो बी के साथ 4 और डी के साथ 2 ऐसा एक ही ऑप्शन में है, विच इज ऑप्शन 1। सो इसमें ए के साथ 3 हो जाएगा विच इज टाइफॉइड, बी के साथ 4 हो जाएगा, सी के साथ 1 हो जाएगा विच इज मलेरिया, एंड डी के साथ हो जाएगा 2। ठीक है, सो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। Now let's see the next question, which says which of the following refers to the sampling approach in structured observation whereby a sample individual is observed for a set period of time। अब देखो जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है ना, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हमेशा ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होगी। और अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, इन ऑप्शंस में स्नोबॉल और पर्पसिव तो नॉन प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, और जो सैंपल हमने सैंपल्ड इंडिविजुअल यानी कि जो हमने सैंपल सिलेक्ट किए हैं वो हमने कुछ पीरियड के लिए ऑब्जर्व किया, तो ऐसा किस में होता है, फोकल सैंपलिंग में। ठीक है, now next question, it says employment of classroom technology needs clarity with regard to instructional messages, course objectives, technological competencies, experience of failures and institutional indolence। अब जब भी हम यूजीसी नेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमें एलिमिनेशन मेथड को जरूर देखना होता है, तो जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं उसको हमें पहले ही एलिमिनेट कर देना होता है। तो यहाँ पर मुझे सामने सामने दिख रही है दो स्टेटमेंट्स विच इज एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स। यहाँ पे क्लासरूम टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर्स का कोई भी लिंक नहीं है, एंड देन इंस्टीट्यूशनल इंडोलेंस का भी कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज, ये ए बी एंड सी वुड बी करेक्ट, एंड हेंस ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it says which of the following are the characteristics of mass communication। मास कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। अब देखो जो मास कम्युनिकेशन होगी, पहले इसके स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है होमोजेनियस ऑडियंस, सेकंड स्टेटमेंट सेज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स, immediate feedback, and statement B says use of a medium, statement E says rapid transmission of messages। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है विच सेज होमोजीनियस ऑडियंस, यहाँ पर होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस होती है ऑडियंस, तो इस हिसाब से ए जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। उसके बाद इमीडिएट फीडबैक, नो, मास कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक कभी नहीं होगा। सो यहाँ पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एज अ सोर्स, यूज ऑफ अ मीडियम,
किसी मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, एंड रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस। यहाँ पर बी, डी और ई करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which fallacy is committed in the following statement? Tarun cannot be guilty of murder since there is no way Tarun could kill someone. तो यहाँ पर आपने अपनी बात को, मतलब यू आर begging around the question, which means आप गोल मोल करके एक ही बात को दूसरे तरीके से कह रहे हो। सो यहाँ पे इसने कहा तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन। तो यहाँ पर जो ये वाली जो स्टेटमेंट है, तरुण कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर और देयर इज नो वे तरुण कुड किल समवन, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं। सेम बात को इसने दो बार कहा, दो अलग अलग तरीके से, तो इस ये कौन सी फैलेसी हो जाएगी? बेगिंग द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। बेसिकली ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें मैन परचेज्ड एन आइटम एट 4/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस x and sold it at 5% more than x. His gain is 25%. Then statement B कहता है a dealer professed to sell his goods at a cost price but uses a weight of 900 grams for a kg weight. His gain is 1/9%. Then statement C says if loss is 1/3 of the selling price, the loss percentage is 25%. And statement C says by selling 100 pence, a vendor gains the selling price of 20 pence. His gain is 20%. तो अब देखो ये एक सवाल है और एक ही सवाल में इसने 4 बार कैलकुलेशंस करने को कहा है। तो अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी दो स्टेटमेंट्स सही हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो अब गाइज यहाँ पर पैसेज के क्वेश्चंस हैं। अब पैसेज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेक यू टू द rather I would say let me take the opportunity to take you through the wonderful learning management system of Human Peritus. Just a moment. तो गाइज ये है हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर हमने पेपर 1 की सारी ही यूनिट्स को कंप्लीटली कवर किया है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलती हैं, जैसे हर एक टॉपिक की आपको एक वीडियो क्लास मिलेगी, एक आपको ई बुक मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमने ओवर द इयर्स काफी मेहनत से एक्यूमुलेट किए हैं। 2009 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक कोई भी टॉपिक दिखा देती हूँ। जैसे कम्युनिकेशन जो है पेपर 1 का पार्ट है, और इसमें जैसे इस पर्टिकुलर यूनिट को हमने कुछ टॉपिक्स में डिवाइड किया है, और हर एक टॉपिक के अंदर लेट मी टेक यू टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हमने इसकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लास ली है, जो यहाँ पर अटैच कर दी है, विच इज दिस। यस, this is the class. Then once you understand the topics, then you can see the ebook here. काफी अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इन सब चीजों के साथ देखिए ये रहा डायग्राम, काफी सुंदर तरीके से जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। देन यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की खास बात ये है कि यहाँ पर 2023 का ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए 2023 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से 22 सवाल आए थे, और यहाँ पर हर एक जो क्वेश्चन है उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं तो आपको ई बुक में जाकर के उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
आप स्ट्रेट अवे यहीं पर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उससे आप पढ़ सकते हैं। आप देखो यहाँ पर हमने जो मैं बात करी थी सेग्रीगेट करने की, तो यहाँ पर देखो 2022, 23, देन 2021 में जितने आए थे क्वेश्चंस, देन 2020, देन 2009 से लेकर 19, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हम और खुद भी बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर मतलब इंक्लूड किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेग्रीगेटेड है सब कुछ, काफी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर हमने चीजें दी हैं ताकि जो स्टूडेंट है उसके लिए यूजर फ्रेंडली हो जाए। देन मॉक्स वगैरह भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते हैं हम। सो अगर आप हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू द व्हाट्सएप लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और इनफैक्ट मैं आपको ह्यूमन पेरेंट्स की वेबसाइट भी एक बार दिखा देती हूँ। सो यस, हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम की कंप्लीट तैयारी हम यहाँ पर कराते हैं। तो एनरोल करने से पहले आप हमारे साथ एक दिन का ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें आप देख पाओगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारी क्या क्वालिटी है, हमारा कैसा कंटेंट है। देन यू कैन डेफिनेटली मेक अप योर माइंड एंड यू कैन डेफिनेटली एनरोल विद अस। और आप जैसा कि मैंने बताया कि व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो। एंड ये रहा हमारा कांटेक्ट नंबर, इसके थ्रू भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस अगेन गो टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको एक बार हम फटाफट से उसके आंसर्स को हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। यस, नाउ 46th क्वेश्चन। 46 का जो क्वेश्चन का आंसर है विच इज ऑप्शन सी। यहाँ पर ये कह रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द चिप बूम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल इंक्रीज। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पैसेज के ऊपर पैसेज को पढ़कर आप इसके आंसर्स आप देख सकते हैं। Then question number 47 says, the new talented skills workforce in India will come mainly from non-IITians orbit. Option 2 इसका correct answer है। Now next question says, India's share in the semiconductor global talent pool is, इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3 which is option 2। अगला क्वेश्चन कहता है माइक्रोन सेटअप अ फैब्रिकेशन प्लांट एंड एटीपी प्लांट, अ सेमीकंडक्टर प्लांट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका आंसर हो जाएगा अ सेमीकंडक्टर प्लांट विच इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है द नीड फॉर एडिशनल टैलेंटेड एंड स्किल्ड workforce in the domestic semiconductor sector has been created by the approval given to Tata Group and CG Power for fabrication and ATP plants, Micron's $8 million semiconductor plant, setting up of new universities, and the global chain supply chain shift centered around chip मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी, यानी कि इसमें से जो स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट नहीं है, बाकी ए बी एंड डी आर करेक्ट। सो हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। So that's all guys. We have done all the questions here. एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आप सोचते हैं कि ए नहीं बी होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि आप कुछ सोर्स दें या कुछ आप अपना रीजनिंग दें कि वो आंसर ए की जगह बी क्यों होना चाहिए। So that's all for today guys. Thank you so much.